Hey Bacha Party, how are you all? Let's begin with the session. In the last video session, we had completed few topics about the structure of the cell. Okay, prokaryotic, eukaryotic animals, organisms, um, about the cytoplasm, the functions and features of cell membrane, cell wall. Okay, now in the previous video we discussed about the cell membrane, and I told you that cell membrane is also considered as a selectively permeable membrane. Why? Because it allows very few things to enter and exist from the cell. Okay, now based on that selectively permeable membrane, okay, based on that selection feature, cell membrane also process with another two kind of procedures. Okay, so let's begin with the new system. Now here it is like, let's discuss, yeah, let's see new topic, that is osmosis. Okay, but hey stupid, wait, we have to first understand diffusion. So today we'll cover the two topics, diffusion and osmosis, but first we will understand the word diffusion. Okay, before that just focus on this thing. The question is like that: what three things pass through the cell membrane or cell wall easily? Okay, which are the three things? कौन सी वो तीन चीज़ें हैं जो easily cell membrane या cell wall से pass हो सकती है? And the three things are carbon dioxide by diffusion process, oxygen by diffusion process, water by osmosis process. In short, if I would say that in diffusion there are there is the exchange of gases, while where there is exchange of water, the process is known as osmosis. ठीक है, एक बार दोबारा से, जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको हम डिफ्यूजन प्रोसेस कहेंगे, और जहाँ पे वाटर का एक्सचेंज होता है उसको हम ऑस्मोसिस प्रोसेस कहेंगे. मैम, कैन यू एक्सप्लेन in detail? Yes. See, diffusion. Now the diffusion here says, what says? See, the movement of molecules. Okay, the movement मतलब आना जाना. The movement of molecules. कौन से molecules? दो gases, carbon dioxide and oxygen. Okay, the gas which we inhale, that is oxygen, and the gas which we exhale out, that is carbon dioxide. From high concentration to the low concentration. Mark this word, as I have already highlighted it, but then to mark this word, because without this information you are unable to write the complete definition of diffusion, and your marks may get deduct, not may, they gets deduct. Okay, so just point it. The movement of molecules, carbon dioxide and oxygen, from high to low concentration, and does not need a cell membrane but can cross one. सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती, बट हाँ ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही उसको सेल के अंदर ट्रांसफर होना होता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द डिफ्यूजन. जस्ट सी द पिक्चर. ओके, हेयर हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे मॉलिक्यूल्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ द हाई कॉन्सेंट्रेशन. Am I clear? Where there is the maximum amount of the molecule. Like for example, if I say कि ये जो है वो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, ये जो है वो ऑक्सीजन गैस है. अब यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरफ ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम है. तो क्या होगा? From the high concentration to the low concentration, the oxygen gets pass, and that process is known as a diffusion. अब अगर मैं इनको सिंपल शब्द में बोलूँ तो सुनो. वी इनहेल ऑक्सीजन, ठीक है ना, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. ना क्यों इनहेल करते हैं? मैम, बिकॉज वो सर्वाइव करने में हेल्प करता है. हाँ समझ गई. फिर भी क्यों इनहेल करते हैं? मैम, हम उसे बच सकते हैं. हाँ, क्यों इनहेल करते हैं? हम इसके लिए इनहेल करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर
ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, दैट मीन्स लो कॉन्सेंट्रेशन. इन द एटमोसफियर the amount of oxygen is maximum, that is high concentration. ठीक है, तो during the inhalation what happens, the oxygen gets transferred from the high concentration to the low concentration. आया समझ में? From the high concentration from the environment to inside the body, that is to the low concentration, and that's why we inhale. That kind of exchange is known as the diffusion process. ठीक है, तो मैम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का काम कैसे हुआ? सेम थिंग. नाउ जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे CO2 का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे? इनसाइड आवर बॉडी. सो नाउ आई इनहेल द ऑक्सीजन, ऑल द प्रोसेस occurred fantastically. Now my body has built up a huge amount of carbon dioxide. Now the amount of carbon dioxide in my body is very much, okay, which my body doesn't need. So it has very much. And now what we can say? We can say that around the atmosphere, like around my environment, the level of carbon dioxide is less, and the level of carbon dioxide inside my body is more. That means inside my body the concentration is high, and outside my body the concentration is low. So what will I do? I will exhale out carbon dioxide gas. That means the process from high concentration of carbon dioxide gas will get passed into the environment as it appears low concentration of carbon dioxide gas. Again, this process is known as the diffusion process. The question might come here, like how does the movement of carbon dioxide or oxygen gas occurs with the help of cell membrane? So you have to explain this diffusion part in a very clear manner. I hope I am clear to all. Okay, the movement of molecules from high concentration to low concentration. Please mark this word. इस अगर इसको भूल गए ना तो आपका definition सही नहीं कहलाएगा. Fine. From high concentration to the low concentration, that is known as diffusion. Let's move to next slide. Now osmosis. I told you osmosis, there is a movement of water. See, एक चीज़ याद कीजिएगा, in diffusion we are saying there is, like अगर समझाना भी है तो we can say that there is a exchange of gases. ठीक है, O2 अंदर जा रहा है, CO2 बाहर आ रहा है, exchange of gases. But in osmosis there is no exchange of water. Okay, there is a movement of water. What I'm saying, there is a movement of water. Okay, so just look at here clearly what it's saying, that the movement of water across the cell membrane. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से जो पानी का मूवमेंट होता है, again from the high concentration to the low concentration. Don't forget this to mention. From the high concentration to the low concentration is known as osmosis. Okay, so in simple word I can frame my own definition like this. There is a movement of water across the cell membrane from the high concentration to the low concentration is known as osmosis. Mem example, thamba I am explaining. Wait, now see the picture. Okay, in this picture, suppose this is a vessel A or any kind of vessel. Okay, and here the amount of water is high. See, I have given you that water is indicated as small bluish dot. Okay, and solute is kind of any other substance जो water के अंदर available है. We know, okay, we can't get the fresh water, pure water. There are always impurities, so that impurities is considered as a solute. Okay, so just forget about that. Now you can see that here you can see the maximum number of blue dots. Okay, you can see maximum number of blue dots. What does this indicate? This indicate that means the concentration of water is very high. Okay, on the left hand side of the vessel, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो है, जो भी हमारा सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है. ओके, अब क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन हुआ. ठीक है, ये डॉट 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 जो है, दिस वन इज कंसिडर्ड एज द सेल मेम्ब्रेन. और उसके बाद आप देखिए ये जो वाटर कंटेंट है, ठीक है, ये वाटर कंटेंट है, ये क्या हो रहा है,
from left hand container to gets transfer into the right hand container, इस तरफ वो आ जाता है. Fine. तो again the movement of water from high concentration to the low concentration through semi permeable membrane, that is known as osmosis. Am I clear? Good. Now types of osmosis. There are 3 types of osmosis. How easy, just understand. Hypertonic, hypotonic and isotonic. Understand it very clearly. Okay. Hypertonic, hypotonic and isotonic. Ma'am, what the meaning? I am explaining. Listen. Now just concentrate on the images I have given. Okay, in the hypotonic you are seeing its face is so shrinkage face, बड़ा wrinkled और shrink face है इसका. हाइपोटोनिक में यू आर सीइंग बल्जिंग स्वेल अप, ओके, पूरा स्वेल सूज गया है उसका पूरा चेहरा. एंड इन द आइसोटोनिक इट्स लुक सो स्मार्ट, ओके, ऑसम. नाउ व्हाट डज इट इंडिकेट? सी इट्स इंडिकेट दैट इन हाइपरटोनिक में क्या होता है, जो पानी होता है सेल के अंदर, ठीक है, वो पानी बाहर एनवायरनमेंट में चला जाता है, तो सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है. उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड से, जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, ओके, आफ्टर वॉशिंग द क्लोथ्स, ओके, वी हैंग देम एंड इन द अंडर द सन ड्राई. क्या होता है, आफ्टर 2-3 आवर्स वी आर सीइंग दैट द क्लोथ्स ना दे आर गेटिंग श्रिंक्ड, ओके, वो श्रिंक हो गए हैं क्लोथ्स. होता है ना ऐसा, श्रिंक हो जाते हैं. वाई? बिकॉज द वाटर, द क्लोथ्स विच कंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर, ओके, दैट वाटर गेट्स इवेपोरेटेड. फाइन, वो इवेपोरेट हो गया, वो वेपोराइज्ड हो गया. तो क्या हो गया, धीरे धीरे जो क्लोथ्स है वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया. दैट्स द वर्ड. ओके, तो ये जो श्रिंक हो गया ना, दैट प्रोसेस इज नोन एज द हाइपरटोनिक. नाउ इसको हम लोग एक और नाम से भी बुला सकते हैं, दैट इज प्लाज्मोलाइसिस. बट मार्क माई वर्ड, plasmolysis word always indicates only the shrinkage of cell in plant. Okay, इसका मतलब ये है, सी ट्री होता है बाहर, ओके, ट्री ने पानी एब्जॉर्ब किया, लीव्स जो होते हैं वगैरह सेल्स के हैं, तो उन्होंने पानी एब्जॉर्ब किया. अब सन, जैसे ही सन की रेज आ जाएंगी तो क्या होगा, सन का काम क्या होता है, टू एब्जॉर्ब द वाटर, ठीक है. तो वो जब सन की रेज प्लांट में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगी तो प्लांट का सेल जो होगा क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द प्लाज्मोलाइसिस. एम आई क्लियर? सो दैट प्रोसेस इज नोन एज द प्लाज्मोलाइसिस. तो व्हेन देयर इज अ श्रिंकेज ऑफ सेल ड्यू टू द इवेपोरेशन, या वी कैन यूज द वर्ड इवेपोरेशन, ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल टू द एनवायरमेंट. सेल में था तो सेल से कहाँ चला गया, एनवायरनमेंट के अंदर, दैट इज नोन एज द हाइपरटोनिक. ना हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक इसका मतलब कि जब पानी जो है वो एनवायरनमेंट में से जाता है सेल के अंदर, पानी जो है वो एनवायरनमेंट में से जाता है सेल के अंदर, दैट इज नोन एज द हाइपोटोनिक. इट्स ऑल्सो कंसिडर एज अ साइटोलाइसिस. सी, साइटो मतलब सेल, lysis मतलब containing water, the cell containing water, that is known as the cytolysis, and its type is considered as a hypotonic. ठीक है. तो जैसे हम लोगों ने पानी वानी पी लिया तो हमारा पेट फूल गया, स्वेलअप हो गया, साइटोलाइसिस. बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे. देन आइसोटोनिक. ओके, आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, ठीक है. इसका मतलब कि सेल के अंदर का अमाउंट ऑफ वाटर एंड सेल के बाहर का अमाउंट ऑफ वाटर, दे बोथ आर इक्वल, तो दैट इज कंसिडर्ड एज द आइसोटोनिक. ओके, नाउ मैम प्लीज स्टिल एक्सप्लेन अस विथ सम अनदर एग्जाम्पल. डन. नाउ जस्ट अज्यूम दैट you have moved
योर होम ना, मूंग है ना, मूंग की दाल, ठीक है, ग्रीन वाली हम लोग खाते हैं, ठीक है, आए मूंग, मस्त, ठीक है। अब आप क्या करना, ये एक्सपेरिमेंट करना आप घर पे, मज़ा आएगा देखने में। अब जब हम लोग मूंग उठाते हैं ना, तो ऑब्वियसली इट इज़ इन ड्राई फॉर्म, ठीक है, तो इट इज़ इन ड्राई फॉर्म। आप क्या करना, जस्ट थोड़े से ही 15-20 मूंग या छोटी सी कटोरी में आप मूंग ले लेना, ठीक है। वो मूंग जो है आप एक बड़े से कंटेनर में पानी फिल कर लेना और मूंग उसके अंदर डाल देना। जस्ट वेट फॉर 3-4 आवर्स, हो सके तो ओवरनाइट कर लेना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब आप सुबह को देखोगे ना, तो आप सुबह को क्या देखोगे कि मूंग के अंदर क्या हो जाता है, पानी फिल्ड हो जाएगा ना, मूंग क्या हो जाएगा, मोटा मोटा हो जाता है, पानी फिल्ड हो जाता है। मोटा मोटा हो जाना इसका मतलब कि साइटोलाइसिस, फूल गया, स्वेलअप हो गया, दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइपोटोनिक। नाउ सी, जब हम लोगों ने मूंग यूज़ किए थे उस दौरान वो ड्राई था, सूखा हुआ था, ठीक है, मतलब कि वाटर कंटेंट नहीं था उसके अंदर, और एटमॉस्फेयर में वाटर जो हमने कंटेनर लिया, उसका मुंह रखा था, उसमें पानी हमने भर दिया, तो एटमॉस्फेयर उसके लिए एनवायरनमेंट है, तो उस एनवायरनमेंट का तो पानी का लेवल ज़्यादा था, ठीक है। तो मूंग ने क्या किया, वो एब्जॉर्ब कर लिया, तो मूंग क्या हो गया, फूल गया, स्वेलअप हो गया, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज साइटोलाइसिस, ठीक है। नाउ अभी आप क्या करना, उन्हीं मूंग को स्ट्रेन कर लेना पानी से एंड कीप इट अंडर द सन रेज, ठीक है, सन रेज के अंदर 3-4 घंटे रख देना। व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यस, यू विल ऑब्जर्व कि जो मूंग है ना, वो धीरे धीरे क्या हो गए, श्रिंक हो गए, श्रिंक अगेन, पानी का लेवल स्वेलअप मूंग में ज़्यादा था, तो जैसे हमने सन रेज के अंदर रखा, डू दिस एक्टिविटी इन समर सीजन, यू विल फाइंड द ग्रेट रिजल्ट्स, ओके। तो जैसे हम लोगों ने उसको सन के अंदर रखा, तो क्या होगा, सन वो ड्राई होता है, तो उसमें से उसने पानी को वेपराइज कर लिया, ओके, एब्जॉर्ब कर लिया, तो सेल क्या हो गया, श्रिंक हो गया। अब आता है इन दोनों के बीच का मैटर। जब हम लोगों ने मूंग को पानी में रखा था, तो क्या सुबह को हमने जब देखा तो मूंग जो है वो पूरा का पूरा पानी एब्जॉर्ब कर गया? नहीं ना, कुछ पानी तो कंटेनर में था। क्यों था? बिकॉज एट दैट टाइम द अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड द मूंग एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन द वेसल, दे बोथ आर इक्वल। तो इसके लिए मूंग जो था वो भी ना पानी ले पा रहा था, अगर एक्सचेंज भी हो रहा था तो सेम परसेंटेज, तो दैट इज कंसिडर्ड एज द आइसोटोनिक। एम आई क्लियर? चलिए लेट्स go further. Now hypotonic, now we will see the detailed explanation. Okay, hypotonic. In hypotonic, when the solute concentration inside the cell is higher than the outside solute in which the things are getting dissolved, that is known as a solute. The solute, that means like मूंग, okay, जिसको हमने डाल दिया अंदर, जो पानी एब्जॉर्ब भी करेगा, जो पानी वेपराइज भी करेगा, उस किसी भी चीज़ को हम लोगों ने सॉल्यूट बोल दिया। यू कैन इधर राइट हेयर एनिमल सेल, यू कैन इधर और राइट ओनली सेल और द सॉल्यूट, वट एवर यू विल फाइंड कंफर्टेबल। सो व्हेन द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन okay inside the cell is higher than the outside the cell, it is called the hypotonic solution. इसका सिंपल मतलब वाटर गोज इन टू द सेल, ठीक है, सेल के अंदर पानी गया, द सेल स्वेल्स, सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। नाउ सी, अब जब सेल के अंदर पानी गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अमाउंट ऑफ वाटर नाउ इनसाइड द सेल इज मोर कंपेयर टू द सराउंडिंग, तो इसके लिए सेल गेट्स स्वेल्स अप, दैट इज हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक अगेन व्हेन द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज हायर, बाहर की तरफ ज़्यादा है, अंदर कम है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ वाटर, दैट इज कंसिडर्ड एज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा कि वाटर गोज आउट ऑफ द सेल, ठीक है, वाटर गोज आउट ऑफ द सेल। अब इसका मतलब क्या हो गया कि पहले यहाँ पे 20% था, पहले यहाँ 20%, अब क्या हो गया 10%। इसका मतलब कि पानी यहाँ से लेकर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, और इसके अंदर जो था वो हाई कॉन्सेंट्रेशन था, बट अभी उल्टा हो गया। तो अब ऐसा होगा तो सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। नाउ आइसोटोनिक, ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? ये आइसोटोनिक का मतलब क्या हो जाएगा? आइसोटोनिक का मतलब होगा सेम, that means the concentration inside
and outside the cell is equal, that is considered as isotonic. Okay, that's why the cell stays the same position, that means equilibrium position, that is known as equilibrium position. Now see, isotonic तो everybody remembers. okay, हाँ, iso मतलब सेम, iso का मतलब ही सेम होता है. ओके, ये आइजो का मतलब ही सेम होता है, तो ये याद करना ज़रूरी है. मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होता है ना, वो भूल जाते हैं कि अरे हाइपर में क्या था, हाइपो में क्या था, भूल गई. अब नहीं भूलोगे, याद करो. ठीक है, टॉम एंड जेरी का टॉम को हम लोग सेल समझते हैं. ओके, ये हमारा सेल हो गया, और ये क्या कर रहा है, पानी पी रहा है. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस, दैट्स वाई. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइपोटोनिक. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, इसने इतना ज़्यादा पानी पी लिया कि अभी वो पानी बाहर निकल रहा है. पानी बाहर निकलेगा मतलब कि पानी गया सराउंडिंग में, तो क्या हो गया, हाइपरटोनिक. ठीक है समझ में, सिंपल. हमें प्यास लगती है ना, हम पानी पीते हैं, दैट इज़ हाइपोटोनिक. याद करना, पानी पीना हाइपोटोनिक. ठीक है, और जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड हो जाता है और हम लोगों को वॉशरूम जाना होता है टॉयलेट के लिए, तो क्या होता है, वी एक्सेल आउट द वाटर. तो जब बाहर निकलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक. आई होप हाइपो, हाइपर एंड आइजो टॉनिक्स, ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे. देन ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ टेल मी, मैसेज मी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एंडोसाइटोसिस. ओके, now next topic, endocytosis. Here endocytosis, that means endo that means enter. क्या है इसका मतलब, एंटर होना. क्या एंटर हो रहा है, फूड पार्टिकल. ओके, व्हेन देयर इज अ लार्ज फूड पार्टिकल विच इज मूव्ड इनटू द सेल, सेल के अंदर जा रहा है यूजिंग द सेल मेम्ब्रेन. सी, इट्स अ फूड पार्टिकल. ठीक है, इट्स अ फूड पार्टिकल, और ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन. दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन. ओके, अब क्या हो रहा है, ये फूड पार्टिकल जो है वो सेल के अंदर एंटर हो रहा है. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम लोग बोलेंगे एंडोसाइटोसिस. एंडो मतलब एंटर, साइटोसिस मतलब सेल मेम्ब्रेन. द फूड पार्टिकल विच एंटर्स इनटू द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो जब एंटर हो रहा है, दैट इज नोन एज द एंडोसाइटोसिस. ठीक है, क्लियर हुआ. ओके, बट मैम इसका यूज़ जो है वो स्पेशली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो करते हैं, वो भी उसमें ज़्यादा जो एम्फोसिस अगर मैं करती हूँ तो दैट इज़ अमीबा. ठीक है, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, कैसे मिलता है उसको. नाउ सी, वी नो दैट अमीबा वो सेल है जो यूनिसेलुलर तो होता ही है, बट उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है. ठीक है, अमीबा वो सेल है जो यूनिसेलुलर तो होता है, बट उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है. तो अमीबा जो खाना खाता है ना, जिस तरीके से, उस तरीके को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं बेसिकली. नाउ सी, अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस. ठीक है, इट हैज़ फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन, शेप फिक्स नहीं होता है, इसके लिए फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन है. इट एंगल्स द फूड, एंगल्स मतलब अंदर ले लेना. ठीक है, अंदर की तरफ ले लेना. तो देखिए आप एक बार पिक्चर में देख लीजिए आप. नाउ सी, ये पूरा अमीबा है. ठीक है, ये रहा फूड वैक्यूल. अब वो फूड वैक्यूल को अंदर की तरफ ले रहा है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. ये क्या है, सूडो, पी साइलेंट. ओके, एस से स्टार्ट होता है, सूडोपोडिया. नाउ सूडोपोडिया, सूडो दैट मीन्स false. Okay, pseudo that means false. And podia that means feet. बेसिकली फीट होता है, बट हम लोग इसके अंदर फिंगर्स भी बोल सकते हैं. ओके, तो क्या होता है ना कि सूडोपोडिया वो क्या होता है, देखिए अमीबा का कोई फिक्स शेप तो होता नहीं है. अब जो उसके सामने खाना आया, जब खाना आएगा तो क्या होगा, वो अपनी मेम्ब्रेन को इस तरीके से डिज़ाइन कर लेता है कि उसके मेम्ब्रेन यूँ थोड़ा सा ओपन अप हो जाती है, और वो जो ओपन अप पार्ट होता है वो ऐसा लगता है कि वो उसके दो हाथ हैं. ठीक है, वो दो हाथ है जो खाने को पकड़ रहे हैं.
तो अभी वो तो नकली है, उसके पास तो है नहीं उसने, तो दैट्स वाई दैट फॉल्स फीट इज कंसिडर एज द सूडोपोडिया, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, देन फॉर्म्स अ वैक्यूल, और उसके अंदर वो वैक्यूल बना, वैक्यूल मतलब फूड वैक्यूल, ये देखिए आपको एरो दिया हुआ है, ठीक है, फूड वैक्यूल, जहाँ पे खाना जाके स्टोर्ड होता है, डाइजेस्ट होता है। नाउ व्हेन द पार्टिकल इज कम्प्लीटली ट्रैप्ड द अमीबा, ट्रैप्ड इनसाइड द अमीबा, पार्टिकल अंदर गया, इट गेट्स डाइजेस्टेड, डाइजेस्ट होगा विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और फिर जो भी वेस्ट होता है, ठीक है, वो वेस्ट जो है वो अगेन सेल के बाहर निकल जाता है बाय रप्चरिंग द सेल मेम्ब्रेन। रप्चरिंग मतलब थोड़ा फट जाता है सेल मेम्ब्रेन, वो बाहर निकल जाता है, अगेन वो सेल मेम्ब्रेन अपना फिर से कवर अप हो जाता है। सो बाय दिस प्रोसेस द अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। क्वेश्चन आता है कई बार ऐसा, ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा। समझ आया? अमीबा अपने नकली हाथ निकाल देता है टू एंकर द फूड, ट्रांसफर इनटू द वैक्यूल। इन द वैक्यूल देयर आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, and after that the waste product gets ejected out by rupturing the cell. That whole process is known as the endocytosis of amoeba. Am I clear? Good. Now I have given you some questions related topics till we have covered. Okay, so just go through the questions, and these, I'm not saying these are the very important questions, yeah, but these are the frequently asked questions. So just go through the questions, and if you find any kind of doubt in the questions, kindly ask. Till then, bye bye, see you, hasta la vista.